Hello students, let us start our questions to solve. This is the question of exercise 6.3. Exercise 6.3. Here we will solve the remaining questions which we have solved in the previous video. In the previous video we have solved the questions up to question number 10. So let us solve the question number 11 here at first. So question number 11 is this. Question number 11 is this. In figure 6.40, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. So figure is given. So let us draw the figure at first. This ABC is an isosceles triangle. Okay. Here this is the perpendicular and this side to join like this. This is point F. This is D. Okay. And this point is E. So in the question it is given that AB equal to AC. AB, this side AB and this side AC are equal. Okay. AD perpendicular BC. This AD is perpendicular on BC. EF perpendicular AC. EF perpendicular AC. And now we have to prove triangle ABD is similar to triangle ECF. So ABD is this triangle ABD and ECF, this one. So let us prove. In triangle ABD and triangle ECF, at first we will write that angle D and angle F are equal because they are of 90 degree each. So angle D equal to angle F, 90 degree each. This is the first one. Second, you know that AB and AC are equal. It is given in the question. AB equal to AC, it is given. So if this side and this side are equal, therefore angle B and angle C will also be equal. So angle B equal angle C. Angle opposite to equal sides. Opposite to equal sides of a triangle are equal. किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स पे इक्वल होते हैं. तो आपको ये एंगल मिल गया और ये भी मिल गया. तो नाउ यू कैन राइट दैट द ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ECF by angle criterion. Okay, so this has been proved here. Now the next question, this is question number 12. Just listen carefully. Question number 12, question number 14 and question number 16 are little bit same type of question. So try to understand. If you can follow one question, if you can understand one question, you can solve all these three questions at the same time. So just try to understand. I am taking here the question number 12. In question number 12, side AB, BC and median AD of a triangle are proportional to side PQ, QR and PM. Figure is given, so let us draw the figure. Triangle ABC.
This is triangle ABC and triangle PQR. Median AD and median PM. So given AB by PQ, BC by QR and AD by PM. These sides are proportional. This side AB, PQ, BC, QR and median AD and PM are proportional. Okay, we have to prove triangle ABC is similar to triangle PQR. तो इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो इसको सिमिलर करने के लिए देखो साइड जो क्राइटेरियन है उसमें हमको सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमको ये साइड प्रोपोर्शनल तो है, दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस। अगर AC बाई PR भी होता यहाँ पे तो डायरेक्ट सिमिलर हो जाता, लेकिन वो नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हम ये करेंगे कि एट फर्स्ट हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, चाहे इन दोनों को करें चाहे इन दोनों को करें, छोटे वाले को। और जैसे ये सिमिलर हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एंगल B और एंगल Q को सिमिलर होने के बाद इक्वल ले लेंगे, इक्वल लिख लेंगे। जैसे ये इक्वल हो जाएंगे तो फिर हमारा AB बाई PQ, BC बाई QR और एंगल B इक्वल टू Q SAS मेथड से सिमिलर हो जाएगा। तो इसको हम फॉलो करेंगे। इसके लिए हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करेंगे और जो हमको गिवन है इसका यूज करेंगे। तो सिंस AB बाई PQ इक्वल BC बाई QR इक्वल AD बाई PM, दिस इज गिवन। इसका यूज करें तो लिखेंगे हम AB बाई PQ BC बाई QR। देखो ये BC है, ये QR है, AD मीडियन है तो ये हाफ हाफ हो जाता है। BD हाफ है BC का, QM हाफ है QR का, तो BC को हाफ करें और उसी तरह से हम QR को भी हाफ करें। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो हमको ये मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, AB बाई PQ अब BC बाई 2, BC का हाफ मतलब BD लिख सकते हैं, QR का हाफ QM लिख सकते हैं हम, और ये जैसा है वैसा है। अब आप देखो, अब दोनों छोटे ट्रायंगल में आप आ गए। AB बाई PQ है, BD बाई QM है, AD बाई PM है, तीनों साइड प्रोपोर्शनल है। तो आप दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर लिख दो। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, साइड साइड साइड। अब ये प्रोपोर्शनल हो गया। इसको प्रोपोर्शनल हम लोगों ने इसीलिए किया था कि एंगल B इक्वल टू Q लिखिए। जैसे हमने B इक्वल टू Q लिखा, तो अब ये हमारा काम हो गया। ये अब हम इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। तो देखिए, लिखिए नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हमारे पास है AB बाई PQ इक्वल BC बाई QR, ये गिवन ही था। और अब हमारे पास है एंगल B इक्वल टू Q, ये जस्ट प्रूव है अभी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR साइड एंगल साइड। तो ये सिमिलर होगा इस तरह से। हमने आपसे कहा था कि 12, 14 और 16 एक टाइप का है, तो हम लोग 13 बाद में हम आपको बताते हैं। हम पहले 14 बताने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए 14 करने के लिए हमको इस क्वेश्चन को पहले इसमें और उसमें फर्क क्या है जानना पड़ेगा। इसमें उसमें फर्क ये है, इसमें साइड BC और QR प्रोपोर्शनल था, BC बाई QR लिखा था। इसमें BC बाई QR नहीं है, इसमें है AC बाई PR। ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, तो चलिए इसको हम लोग अभी करते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, बस सिर्फ यही बदला हुआ है। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे
ए बी ए सी, तो ए सी बाई पी आर लिखें यहाँ पे। इस फिगर को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन है। तो गिवन हमारे पास है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी नहीं है इस बार, ए सी बाई पी आर और इक्वल ए डी बाई पी एम है। प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। कंस्ट्रक्शन हमने जो बनाया है वो ये है। कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा बनाया है कि ए डी के इक्वल बी को ड्रॉ किया है, पीएम के इक्वल एमएस को ड्रॉ किया है। तो ये लिखेंगे कि ड्रॉ एडी इक्वल डीई, पीएम इक्वल एमएस एंड इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन बीई एंड ज्वाइन क्यूएस। चलिए अब प्रूफ करते हैं। कई तरीके हैं इसको प्रूफ करने के, कोई ना कोई एक मेथड लेना होगा, तो हम लोग ले रहे हैं। और हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, इसको और इसको कॉन्वर्ट करेंगे। तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई में। ए डी सी ये है, बी डी ई ये है, इस दोनों को कॉन्वर्ट करेंगे। कॉन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है क्या क्या चीजें हैं, ए डी इक्वल डी ई है कंस्ट्रक्शन से, हमारे पास बी डी इक्वल टू डी सी है, और हमारे पास ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल भी है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है बी डी ई, इधर है ए डी सी, इसको लिखें एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी डी ई। ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल, और हमने आपसे बताया था कि बी डी इक्वल टू डी सी भी है, क्योंकि ए डी मीडियन है, मीडियन हाफ हाफ करता है। ए डी इज मीडियन टू बी सी, तो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। मेथड लग गया साइड एंगल साइड। इसको कॉन्ग्रुएंट इसलिए किया क्योंकि हम बीई और एसी को इक्वल लिखना चाहते हैं, तो हम लोग लिख देंगे कि बी इक्वल एसी, सी बी सी। अब देखो ये सारा वर्क हमें यहाँ भी चाहिए, हमें इन दोनों ट्रायंगल को भी करना है कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल पी एम आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू एम एस, इसी मेथड से। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो यहां भी हम लोग लिख लेंगे पी आर इक्वल टू क्यू एस, सी पी सी टी। तो ये लिखने का मतलब क्या था, फायदा क्या था, अब हम देखते हैं। अब हम आएंगे इसमें ट्रायंगल ए बी ई में। देखिए ए बी ई में आएंगे और इसको हम सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इसमें, लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, अच्छा इसको करने के लिए हमारे पास पहले से ये दिया हुआ है, तो इसको ले लेते हैं कि वी हैव ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ए बी पी क्यू को एज इट इज छोड़िए, हमें इस बड़े वाले को ट्रायंगल को और इस बड़े वाले ट्रायंगल को करना है सिमिलर। ए बी बाई पी क्यू एज इट इज ठीक है, ए सी बाई पी आर को ए सी के जगह पे हम लोग बी लिख सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे किया ए सी इक्वल टू बी, तो ए सी के जगह पे डाल दीजिए बी, पी आर के जगह पे क्यू एस।
और एडी और पीएम में 2 मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू एडी 2 इंटू पीएम। एडी को डबल कर दिया तो आ गया एई तक, क्योंकि ये दोनों इक्वल था तो एडी और डीई इसकी ट्वाइस कर दिया तो बन गया एई। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी अपॉन क्यू एस इक्वल टू ए ई अपॉन पी एस। ओके, इसमें पी एस मिल गया और इसमें ए मिल गया। अब एक काम और करना, इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4। इससे सुविधा होगा लिखने में। अब हमारे पास देखिए क्या है, ए बी बाई पी क्यू, बी बाई क्यू एस एंड ए ई अपॉन पी एस। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस, और ये मेथड बनता है साइड साइड साइड। इसलिए किया था इसको कॉन्ग्रुएंट सिमिलर किया था, सॉरी, कि जिससे हम लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। हो सकता है सीपीएचटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख सकते हो। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसके लिए हमें फिर ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सेम वर्क इधर जो है वो इस साइड भी होगा तो हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे कि सिमिलरली एंगल 2 इक्वल एंगल 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 2 का मतलब है एंगल ए और 3 प्लस 4 का मतलब है एंगल पी। तो हमको ये एंगल और ये एंगल मिल गया इक्वल। तो हमारे पास देखिए ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर पहले से है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो ऐसे लग जाएगा। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अब लिखते हैं हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन था, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। जस्ट प्रूफ है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर साइड एंगल साइड। ये प्रूफ हो गया। हमने आपसे बताया था कि क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरह का है, जिसमें ए डी पी एम मीडियंस है ट्रायंगल्स का, और ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। प्रूफ करना है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। इन क्वेश्चंस के ही जैसा ये क्वेश्चन भी है, इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। इसमें ये कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। इसको अगर हम सिमिलर करेंगे तो हमको ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम मिल जाएगा। सिमिलर कैसे करेंगे, हमको दिया हुआ है कि दोनों बड़े वाले ट्रायंगल ऑलरेडी क्या है, दोनों बड़े वाले ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर हैं। तो वहां से हमको ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये है हमारे पास। तो ये चीजें जब 14 था, सॉरी पिछला क्वेश्चन, ये 16 है। तो इसमें जो है हमारा, हम आपको बता रहे थे कि ऑलरेडी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो चलते हैं कि गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसमें दिया हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं। प्रूफ करना है कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए डी बाई पी एम। प्रूफ करेंगे हम लोग। तो जैसे एज इट इज दिया है कि ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर है,
तो सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। बी सी बाई क्यू आर लिया इक्वल ए सी बाई पी आर ले लेंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हमने ये दोनों लिया। अब इससे हम ऐसा कुछ करें। अच्छा देखो, हमारे पास एंगल बी और क्यू तो पहले से इक्वल है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया है। इसी में आगे थोड़ा सा करते हैं। एडी मीडियन है, तो ए बी बाई पी क्यू, बी सी का हाफ कर दो, तो बी सी का हाफ कर दो और क्यू आर का भी हाफ कर दो, तो क्या आएगा? हमारे पास आ गया ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी का हाफ बी डी, क्यू आर का हाफ क्यू एम, ये मिल गया। तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये दोनों साइड छोटे ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल हो गया। ऑल्सो हमारे पास एंगल बी और क्यू है क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, इसलिए। तो हमारे पास फॉर्मूला लग गया, कौन सा? अब हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया पी क्यू आर से। कौन सा फॉर्मूला लग गया था? साइड एंगल साइड। तो हो गया ये प्रूफ। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गया ये दोनों ट्रायंगल, तो आप लिख सकते हो कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो हमने आपको क्वेश्चंस बीच में छोड़े थे। क्वेश्चन था एक 13 और एक क्वेश्चन है 15। देखिए करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। नंबर क्वेश्चन ऐसा है कि D इज a पॉइंट ऑन BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल है ABC और इसके ऊपर एक कोई पॉइंट है D, सच दैट ADC इक्वल BAC। तो ये गिवन में आएगा कि एंगल इन ट्रायंगल ABC एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। तो प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू C। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम ट्रायंगल इसको लेंगे और इसके साथ ABC को। तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने के लिए क्वेश्चन में दिया है कि ADC इक्वल है BAC के, तो BAC ये हो गया, ADC ये दोनों एंगल इक्वल है। चलिए लिखते हैं, एंगल ADC इक्वल एंगल BAC गिवन है। दोनों में एंगल C कॉमन है, लिख दो एंगल C इक्वल टू C कॉमन। ट्रायंगल हो गया सिमिलर। एंगल क्राइटेरिया, जब ये सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शनल होता है। साइड प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइड प्रोपोर्शनल है तो कैसे लिखें, किसको ऊपर किसको नीचे। बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से आप लिख दिया करो। अगर आपको ये दिया है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप CA स्क्वायर है तो यहाँ CA लिखिए, इक्वल का साइन डालो, यहाँ भी CA लिखो, क्योंकि इसमें स्क्वायर है। ऐसे लिखो कि इंटू करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे CA स्क्वायर आ जाए। एक में CB लिख दो और दूसरी जगह CD लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आ जाएगा। तो CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, और ये हो गया प्रूफ। ओके, एक क्वेश्चन और बच रहा था, क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। यह है कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो एक वर्टिकल पोल है जो 6 मीटर जिसकी लेंथ है, वो शैडो बनाता है 4 मीटर का ग्राउंड पे। एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। एक टावर उसी समय 28 मीटर लॉन्ग शैडो बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट बतानी। देखो इसको दो तरह से बनाते हैं लोग, दो फिगर इसका बन सकता है दो तरह से। हमने एक ये बनाया ABC, तो ये टावर लिया, ये शैडो,
और दूसरा जो था वर्टिकल पोल, ये पोल है। तो अब देखो फिगर में डालते हैं, पोल की लेंथ है 6 मीटर, तो ये लेंथ हो गया 6 मीटर, ए बी सी, इसको ले लिया डी और ये ई, 6 मीटर है। इसकी शैडो जो है 4 मीटर लॉन्ग, यहां से यहां तक की शैडो है 4 मीटर। अच्छा, एट द सेम टाइम टावर कास्ट शैडो 28, ये टावर है बड़ा वाला ए बी और इसकी शैडो है 28 मीटर। इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है, तो ये फिगर है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन, सीधे सॉल्यूशन करते हैं। गिवन और टू फाइंड, ये आप लिख लेना। इसको पहला हमारा काम होगा, सिमिलर ट्रायंगल का है तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, एबीसी को और डीईसी को। लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईसी। डीईसी ये है, एबीसी बड़ा ट्रायंगल। सिमिलर करने के लिए देखिए हमारे पास एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाते हैं। वर्टिकल है, सीधी खड़ा है, बी और ई हो गया। आप देखोगे एंगल सी कॉमन है, तो एंगल सी इक्वल टू सी कॉमन, दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई सी, एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब जब सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे। साइड को प्रोपोर्शनल लिखना है तो ध्यान दें कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को ही लिखेंगे। इसको अगर ए बी को लिया तो फिर डी लेंगे, तो लिखेंगे हम ए बी बाई डी ई इक्वल, ए बी का लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ए बी सी से बी सी लेंगे और इसका ई सी लेंगे। तो ये ऐसा, अब इसमें वैल्यू डालें। ए बी की वैल्यू है h, डी ई की वैल्यू है 6, बी सी की वैल्यू है 28, ई सी की वैल्यू है 4, ऐसा है। तो आप देख लो फिर से, ए बी की वैल्यू है h, डी ई की वैल्यू है 6, बी सी की वैल्यू है 28 और ई सी की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व करें आगे, तो 4h इक्वल टू 28 इंटू 6, h इक्वल टू 28 इंटू 6 बाई 4, 7, h इक्वल टू 42 मीटर। हैंस हाइट ऑफ टावर equal to 42 meter answer. Okay, this is all for today. Thank you.